Hello, dear learners. Hello, dear champs. Welcome back to Phoenix EDU. I am your IU ma'am, and I'm back with another solution to all your problems. No, that's not me. That's Srimad Bhagavad Gita. As I've already stated in the short that I had prepared, that we have been introduced with 2 new units which are based on Srimad Bhagavad Gita. No, again, they are not the chapters of Srimad Bhagavad Gita. They are rather essays written on Srimad Bhagavad Gita. चैप्टर्स नहीं लिए गए हैं श्रीमद् भागवत गीता से, श्रीमद् भागवत गीता पे लिखे हुए एसेस हैं. उसी में से एक एसे हमारा फर्स्ट एसे बन के आया है जो कह रहा है द श्रीमद् भागवत गीता द यूनिवर्सल स्क्रिप्चर. नाउ यूनिवर्सल मीन्स व्हाट? इट अप्लाइज टू all of us, to me, to you, to everyone around us, right? So here you must be seeing Krishna with certain equipments, and then there is this bizarre boy who is appearing to be in trouble. So in today's time, what are the things that put us under trouble? Mostly the gadgets we have, the gizmos we deal with. So here Shri Krishna has arrived to guide our lives. So here I have tried to portray modern day Arjun. So Krishna is going to guide the modern day Arjun, that is us, right? And now when I say the Srimad Bhagavad Gita as the universal scripture, what is it actually saying? I've already stated it in the shots. If you haven't watched it yet, go and see it. So it's basically talking about why does Srimad Bhagavad Gita apply to all of us in the universe. Right, everyone? Because it is a lesson for everyone, everywhere. It is a lesson for everyone, everywhere. When I say it is applicable to the universe, what does it mean? There is a lot of wisdom in Gita that it is giving it away to everyone, right? इतना कुछ है गीता के अंदर जो हमारे लाइफ को, हमारे पाथ को easily sort out कर सकता है. बट चाहिए क्या? राइट पर्सपेक्टिव. इसमें बात करी गई है कि यूनिवर्सल मैसेज, देयर इज दिस यूनिवर्सल मैसेज विच इज़ फ्लोटिंग इन द भागवत गीता. यूनिवर्सल मैसेज क्या है? ह्यूमन काइंड के लिए मैसेज है. एंड इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी रिलीजन. श्रीमद् भागवत गीता किसी भी एक रिलीजन के लिए नहीं है. दैट इज़ वॉट दिस essay is going to talk about. Now when I say that, I just want you to understand, while we are discussing this as an essay, we need to understand the structure of the essay that is followed in this particular write-up that we have in our syllabus. The first 2 paragraphs are going to talk about the introduction to the topic, which is the Srimad Bhagavad Gita, the universal scripture. So what is it talking about? It is talking about how Srimad Bhagavad Gita cannot be restricted to a religion, to a country, to a community, to a caste or anything. It is for everybody, everywhere. We are going to delve into, we'll be reading further, हम आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से द श्रीमद् भागवत गीता के लिए काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं. वो ओपिनियन किसी सिर्फ इंडियन का नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे ओपिनियंस दिए हैं और उसी ओपिनियन के बारे में बात करेंगे in the second paragraph of your essay. So you'll have to read a little closely. आपको पता ही होना चाहिए कि 4 marks के MCQ आ रहे हैं, तो MCQ in between the lines आएंगे, ठीक है? So it is a lesson that cannot be restricted to anything. It's even timeless. So this was written way back, more than 5,000 years back. Srimad Bhagavad Gita was written more than 5,000 years back. Now, a text that old still takes a strong strength in today's time. समय बदल गया है, लोगों का approach towards life has changed, but the message is the only constant that we see in this Bhagavad Gita. So what is Bhagavad Gita? So you must be aware of the fact that Bhagavad Gita is a part of Mahabharata. So there is this huge Indian epic named as Mahabharata, जिसके अंदर हम देखते हैं there was this battle that took place in Kurukshetra, the Mahabharata,
right? That battle in the Kurukshetra, when that was being fought between Pandavas and the Kauravas, we have witnessed that Arjun was in dual state of mind. वो परेशान थे कि अरे ये क्या हो रहा है? Why am I fighting against my own cousins? See, somebody who hasn't been knowing what is it actually about might actually misinterpret, might actually misunderstand this entire thing. कि भाई, a man, right, a man like Krishna whom we all worship, कृष्ण ने गलत राह दिखाई. What is it? Did he teach Arjuna to fight against his cousins? No. What is the actual message? What was the dual state of mind when it came to Arjuna? Arjuna was confused कि why should I be battling against my cousins? अपने cousins के against क्यों लड़ूं? और उस चीज़ पे वर्क किया था किसने? कृष्ण ने उस सिचुएशन को हैंडल किया. उन्होंने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भाई, यू आर नॉट बैटलिंग अगेंस्ट योर ब्लड लाइन, यू आर नॉट बैटलिंग अगेंस्ट योर लिनेज, यू आर एक्चुअली बैटलिंग अगेंस्ट द इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, द रॉन्ग डीड्स ऑफ द पीपल. यू आर नॉट बैटलिंग अगेंस्ट योर लिनेज. तुम लोगों के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे हो, तुम लड़ रहे हो उनके गलत किए हुए के अगेंस्ट. ये सीख दी थी श्री कृष्ण ने. नाउ वील कम टू द पॉइंट. आपका फर्स्ट पेज पे जो हमने यहाँ पे रखा है, श्री कृष्ण इज़ गाइडिंग द अर्जुन ऑफ टुडेज टाइम, कि भाई उस समय पे भी यही कन्फ्यूजन थी, आज भी वही कन्फ्यूजन है कि आखिर करें तो करें क्या. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं. तो श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को कंसोल किया था, वैसे ही हमारी फर्स्ट लाइन ऐसे की दी हुई है कि इट इज़ अ डिवाइन कॉन्वर्जेशन बिटवीन अर्जुन एंड श्री कृष्ण, जहाँ पे अर्जुन इज़ रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन काइंड. भाई, इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन काइंड एंड श्री कृष्ण इज रिप्रेजेंटिंग द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. क्रिएटर और ह्यूमन के बीच की कॉन्वर्जेशन है. भाई, एक क्वेश्चन पूछ रहा है और एक जवाब दे रहा है. तो क्वेश्चन पूछने वाला कौन है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये हमारी एपिक की बात है, इंडियन एपिक की बात है. क्वेश्चन पूछने वाला कौन है वो आप मुझे बताएंगे और आंसर देने वाला कौन है. बट क्रिएटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्री कृष्ण और ह्यूमन काइंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन. इसलिए जितने भी क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछे हैं और जो क्रिएटर ने आंसर दिए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछे हैं और जो क्रिएटर ने आंसर दिए हैं, जो आंसर्स हैं, इट इज़ एप्लीकेबल टू everyone. इसलिए हम कह रहे हैं everyone as in the human kind. इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता is a lesson for everyone everywhere, right everyone? Also it is timeless. There is no time that you can restrict it to. कोई एक टाइम में रख के नहीं रहना है भाई. No, बिल्कुल नहीं. It is timeless. समय से चला आ रहा है, आज भी एप्लीकेबल है, आगे भी एप्लीकेबल होगा. ये दिया है आपके इंट्रो पार्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में. आपका सेकेंड पैराग्राफ ओपन होगा विच टॉक्स अबाउट व्हाट फेमस पीपल हैव टू टॉक अबाउट और से अबाउट द गीता. व्हेन आई से फेमस पीपल, वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग द आइडिया ऑफ भागवत गीता बीइंग एसोसिएटेड इन इंडिया ओनली. सिर्फ इंडियंस ने नहीं रीड करी है श्रीमद् भागवत गीता. श्रीमद् भागवत गीता कई सारे फिलोसोफर्स ने, इनफैक्ट आप सरप्राइज हो जाएंगे. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ साइंटिस्ट यू हैव बीन स्टडीइंग हैज ऑल्सो रेड श्रीमद् भागवत गीता. तो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी कि लाइक people worldwide, people across the globe, they are appreciating, they are applauding our scripture. Now when I say our scripture, I mean an Indian scripture, a scripture that has risen from the Indian soil, which is the Srimad Bhagavad Gita, because it is the way of life, how we have to lead our lives, right? So we'll start with Henry David Thoreau. Henry David Thoreau, he has stated that
early in the morning what happened is he is saying once what happened early in the morning I just read भागवत गीता. मैंने सुबह सुबह भागवत गीता पढ़ ली और मेरे ना दिमाग मतलब ऐसा लगा जैसे आज मैंने कुछ नया कर लिया भाई. एकदम नहा लिया, मेरे दिमाग ने नहा लिया. सो जब हम नहा लेते हैं वी फील फ्रेश. लाइकवाइज ही इज सेइंग दैट माई इंटेलेक्ट हैड बेड. मेरे दिमाग ने नहा लिया, मेरा दिमाग एकदम फ्रेश हो गया. और फिर भाई पूछो मत क्या हुआ कि भाई जो मॉडर्न वर्ल्ड था ना, ये पूरा मॉडर्न वर्ल्ड मुझे फनी एंड ट्रिवियल लगने लगा ना. फनी एंड ट्रिवियल मतलब तुच्छ, नॉन सिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट लगने लगा ये मॉडर्न वर्ल्ड. और वही इन्होंने बुलाया है हमारे भागवत गीता को स्टुपेंडस मतलब माइंड ब्लोइंग. इन्होंने कहा है कि भाई ये जो भगवत गीता है ना वो रीड करी ना, इसके लिए एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं. स्टुपेंडस यानी माइंड ब्लोइंग एंड कॉस्मोजेनिक मीन्स दैट कवर्स एंड कंपासेस द यूनिवर्स, एवरीथिंग दैट्स देयर इन यूनिवर्स. जब ये रीड किया मैंने, ये फिलॉसफी, ये यूनिवर्सल फिलॉसफी रीड करी भागवत गीता की, हो मेरा तो एकदम दिमाग एकदम नेक्स्ट लेवल का फ्रेश था. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एल्डस हक्सली. एल्डस हक्सली ने कहा कि जब मैंने भगवत गीता रीड करी तो मुझे समझ में आया कि यार ये तो मॉडर्न वर्ल्ड जितनी एग्जिस्टिंग लाइफ लॉन्ग फिलॉसफी है, ठीक है, जितनी एग्जिस्टिंग, यहाँ पे एक वर्ड आता है पेरिनियल. पेरिनियल का मतलब लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, नेवर एंडिंग. जो एग्जिस्टिंग जितनी भी फिलॉसफी है उनकी कहीं ना कहीं ये समरी है, उनकी ये समरी है. Therefore he has said the Gita is one of the most clear and comprehensive summaries of perennial philosophy ever revealed. Hence its enduring value is subject not only to India but to all humanity. इन्होंने भी कह दिया, ठीक है. हमारे हेनरी डेविड थॉरो ने क्या कहा था कि भाई इट्स कॉस्मोजेनिक यानी यूनिवर्सल है. इन्होंने क्या कहा कि भाई दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमैनिटी. बनाना ना जस्ट इंडिया तक ना रखो भाई, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है. इस लेवल तक इन्होंने कह दिया. मतलब सोचो, अगर मतलब बच्चों देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये तो इंडियन नहीं है ना. इंडिया में ऐसे नाम प्लस दैट्स हिम, ठीक है. तो कि भाई पेरिनियल यानी जितनी भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग लास्टिंग हमारी जो फिलॉसफी है, ये सारी फिलॉसफी का, ये सब का मतलब अगर इन शॉर्ट इफ़ आई हैव टू से कि भाई ये कह रहे भाई भागवत गीता ना बाप है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग लास्टिंग फिलॉसफी का बाप है भागवत गीता. ठीक है. अच्छा, while I was teaching the students in the classroom, they came across questioning, because when you read the essay you will see that Gita is not being addressed as it is being addressed as she. अब यहाँ पे she बोलने का क्या पर्पस है? एक तो the name Gita, right? Gita is a feminine name, a female's name in India. Now, secondly, it is guiding. It is usually said that the soft guidance comes from the female part. Therefore, her, she, right? Such pronouns are used. Okay? So, it is one of the most comprehensive summaries of perennial, long-lasting philosophies. Now we have Wilhelm von Humboldt. इन्होंने कहा है कि भाई इतने सारे फिलोसफिकल सॉन्ग्स हमने सुने हैं, इतने सारे फिलोसफिकल, हम बोलते हैं ये भी फिलोसफिकल सॉन्ग है, वो भी फिलोसफिकल सॉन्ग है, पर यार इससे ज़्यादा ब्यूटिफुल तो कुछ भी नहीं है. द मोस्ट ब्यूटिफुल, परहैप्स द ओनली ट्रू फिलोसफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नोन टंग. Now students, you might wonder that why are we discussing what they have said. See, this is going to come for your MCQ. This unit is going to come for your MCQ. Now you never know what could come as your MCQ, because in the sample paper we have one such question wherein they have asked that who has said this about the Bhagavad Gita. So you'll have to be careful, read closely. So let's look at the keywords that we might require. So when it comes to Henry David Thoreau, कॉस्मोजेनिक, स्टुपेंडस कॉस्मोजेनिक फिलॉसफी बुलाई है श्रीमद् भागवत गीता को, राइट. लाइकवाइज एल्डस हक्सली ने कहा है कि भाई दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव समरीज ऑफ पेरिनियल फिलॉसफी. ठीक है. एंड इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू इंडिया बट इट शुड हैव एक्सिस्ट एवरीवेयर. लाइकवाइज हमारे विल्हेम वॉन हम्बल्ट ने कहा है कि भाई दिस इज़ द ट्रू फिलोसफिकल सॉन्ग
ठीक है, द मोस्ट ब्यूटिफुल फिलोसफिकल सॉन्ग एवर रिटन. देन वी हैव योर वेरी ओन डी एल्बर्ट आइंस्टाइन. डी एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं मैम लिटरेचर का और इसका क्या लेना देना, बट दिस मैन, इन्होंने कहा कि जब से मैंने ये श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है और जब मैंने रीड किया तो मुझे लगने लगा यार एवरीथिंग इज सुपरफ्लुअस यानी एवरीथिंग इज इनसिग्निफिकेंट. क्रिएटर ने जो सोच के इस दुनिया को बनाया था वो जानने के बाद तो लग रहा है यार सब कुछ सुपरफ्लुअस है, इनसिग्निफिकेंट है. अगर अपनी भाषा में बोलें मोह माया है. सर किसने कहा है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. कि भाई सब कुछ, जब से ये जान लिया ना मैंने कि क्रिएटर, जब से मैंने भगवत गीता पढ़ी और मुझे पता चला कि क्रिएटर का पर्पस क्या था बनाने का, तब से तो मैं एकदम ऐसा हो गया कि अरे ये क्या हुआ. ठीक है, मैं मोह माया में जी रहा था. आफ्टर रीडिंग द गीता एवरीथिंग एल्स सीम्स सो सुपरफ्लुअस, सेड Albert Einstein. Now, the father of the nation, Mahatma Gandhi. He has said कि जब भी मुझे परेशानी हो, जब भी मुझे कुछ दुख हो, जब मैं बहुत disappointed हूँ, disheartened हूँ, तो उस समय I had Gita to go to. अब गीता, तब भागवत गीता, उसमें एक वर्स रीड किया, मुझे कोई ना कोई कंफर्टिंग वर्स मिल जाता था, वो रीड कर लेता था एंड आई वॉज गुड टू गो. लाइकवाइज ये हमारा, देखो बच्चों, ये ना हमारे सेकंड पैराग्राफ में दिए हुए हैं. यहाँ पे अ बुक फॉर स्पिरिचुअल डायग्नोसिस, ये आपका क्लोजिंग में, कंक्लूजन पार्ट में ही उनका स्टेटमेंट दिया हुआ है. ये क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में है. ठीक है, कि हु हैज सेड दैट गीता इज अ बुक फॉर स्पिरिचुअल डायग्नोसिस. सो यू मस्ट नो महात्मा गांधी. Done. Next we have our own Dr. APJ Abdul Kalam. See, we are living in the country that is fighting over religion, over communities, and we are trying to settle them down, right? And then we have this exemplary example over here, Dr. APJ Abdul Kalam. You must be aware of who he is. He is our former president. So he has stated that Gita always had solutions to all my problems. मेरे सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गीता के पास था और परमानेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ये ह्यूमन बींग्स के लिए. मतलब somebody who is not belonging to the religion that we feel Gita belongs to has also read it and has appreciated it. Does it make sense now? Why are we saying that this is a universal scripture? Because this is guiding everybody. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेगमेंट के लोगों को गाइड कर रहा है, सबको गाइड कर रहा है. Done. So now we are going to enter into the next part, which is going to be the further explanation of the idea of the Srimad Bhagavad Gita being the universal scripture. Right? Okay, so this man is going to be seen furthermore. Sri Aurobindo Ghosh, he has said that it's great work of spiritual synthesis. इतना अच्छा काम है जो सब एक साथ इकट्ठा करके हमें बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा. लाइकवाइज वी हैव लोकमान्य तिलक, जिन्होंने कर्तव्य और अकर्तव्य, ड्यूटी एंड नॉन ड्यूटी के बारे में कमेंट किया कि भाई गीता हमें हमारी ड्यूटीज़ याद दिलाती हैं, हमारी कौन सी ड्यूटीज़ नहीं हैं इन्हें भी याद दिलाती हैं. ठीक है बच्चों, चलो let's get into the next part. So this Gita talks about one ultimate energy. That one ultimate energy is being identified as Vasudev. Okay? And this is resonating closely to the philosophy that we are aware of, the Vedanta philosophy. Vedanta philosophy says that God is formless, God has no form. ठीक है, लाइकवाइज भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि भाई एक ही हैं, एक ही डिवाइन एनर्जी एग्जिस्ट करती है, एक ही प्योर एनर्जी एग्जिस्ट करती है और वो डिवाइन एनर्जी, वो प्योर एनर्जी सबके अंदर अलग अलग फॉर्म्स में, मतलब है एक ही एनर्जी बट वो एनर्जी सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है. वो डिवाइन एनर्जी सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब वो डिवाइन एनर्जी है कौन सी? वो डिवाइन एनर्जी है वासुदेव. ये अपने कंटेक्स्ट में उन्होंने बात करी है कि भाई वासुदेव सब जगह प्रेजेंट है, मुझ में, तुम में, हमारे आसपास, सब में, हर एक चीज़ में वासुदेव प्रेजेंट हैं. ये आइडिया आपको सेकंड चैप्टर में भी देखने को मिलेगा. ठीक है, कि गॉड इज़ एवरीवेयर, एवरीवेयर. वो गॉड है कौन? वो तुम जिस नाम से बुला लो, तुम जिस नाम से बुला लो. हमारे भगवद गीता में भगवान वर्ड बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है, भगवान वर्ड बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है भागवत गीता में.
तो इसीलिए कि भाई अगर वासुदेव मुझ में भी हैं, तुम्हारे में भी हैं, और वही सेम वासुदेव के छोटे छोटे पार्ट्स हम सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब अगर हम सोचें तो हम सब तो एक हैं, हम सब एक हैं। तो हम बैटल आउट क्यों कर रहे हैं, हम अपने अंदर नेगेटिविटी क्यों भर रहे हैं, हम किसी और के लिए गलत क्यों सोच रहे हैं। ये मैसेज दे रही है श्रीमद् भागवत गीता कि भाई हम सब एक ही डिवाइन एनर्जी, एक फॉर्मलेस एनर्जी, जिसके बारे में वेदांत फिलॉसफी में भी मेंशन है कि हम सब एक फिलॉसफी में से आए हुए, हम सब एक फॉर्मलेस डिवाइन एनर्जी से फॉर्म हुए लोग हैं। ठीक वैसे ही जैसे बलून्स हैं, बलून्स के अंदर एयर है, राइट, एयर सेम है, बलून के शेप, साइज, कलर अलग है। ठीक वैसे ही हम सब का एग्जिस्टेंस है, हम सब एक डिवाइन एनर्जी से आए हैं और हम सबको ये बात रियलाइज़ करनी ज़रूरी है। जिस दिन हम ये रियलाइज़ कर लेंगे कि भाई हम सब तो एक हैं, हम झगड़ेंगे ही नहीं, हमारे पास एक अच्छी शांत कोऑपरेटिव वर्ल्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए द वन सोल रूल कि भाई देयर इज जस्ट वन सोल दैट इज एग्जिस्टिंग एंड दैट इज द वासुदेव और वट एवर नेम यू वांट। बिकॉज द वेरी नेक्स्ट कि भाई श्रीमद् भागवत गीता में भगवान शब्द बहुत रेपिटेटिव है। भगवान है कौन? तो भगवान की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं भगवान की। 6 में स्टार्ट करते हैं लिस्ट, आप जाएंगे आपके सेकंड पेज पे आपको मिल जाएगी। तो जब आप ओपन करेंगे तो 6 में फर्स्ट उसमें ना विष्णु पुराण में का श्लोक दिया है, वो श्लोक की 6 प्रॉपर्टीज़ फिर एक्सप्लेन करी हैं। फर्स्ट इज़ ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस का मतलब क्या भाई? दरिया दिली। भगवान इतने बड़े दिल के हैं कि कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, तुमने एक्सेप्ट किया, तुम पश्चाताप करना चाहते हो, यू आर फॉरगिवन। ठीक है। सेकेंड, गॉड हैज़ अ रिलीजन। नाउ रिलीजन क्या है? ह्यूमैनिटी। बच्चों कोई भी रिलीजन जिसको आज हम नाम दे दें, कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन यही बात कर रहा है कि प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी, स्प्रेड ह्यूमैनिटी, स्प्रेड पीस, स्प्रेड नॉन वायलेंस, यही बात कर रहा है कोई भी रिलीजन। और हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट इज ऑप्यूलेंस, second is religion, third is glory. Now glory means what? That the God will have certain, the certain examples that God has set in front of everybody कि भाई हाँ ये भगवान है, इस चीज़ का किस हिसाब से पता चलेगा? बिकॉज उन्होंने कुछ खास किया है। ठीक है। I've been giving this example because I am currently located in Vadodara and I'm not somebody who was in Vadodara since forever. But when I came here, I got to know about Meldima and Khodiyarma. This is just an example. I'm not referring to any of the religion because we know that Gita has no religion. It is for everybody. But यहाँ पे because I know these little things, I'm trying to put it all in. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई जैसे ये द लिटिल गॉड्स आई मेंशन, द देवीज मेलडीमा एंड खुडियारमा, they are not known to other parts of the country. People might have hardly heard their names, right? But what is it that they are so much renowned now? कि क्यों यहाँ इस एरिया में? Because they have done something. They have fulfilled their purpose of life. They have made sure that other people follow them, not them, but follow them to the divine path. कि भाई वो भी चल के जा रहे हैं डिवाइन पाथ पे, हम बाकियों को भी अपने साथ में डिवाइन पाथ पे लेके जाएंगे। That is what these people did. So अभी यही चीज़ आगे बढ़ती है और हम ये देखते हैं कि देखो अभी opulence is done, religion is done, glory is done, now grace. भाई that God should have that grace. भगवान must have that grace कि हाँ भाई we are going to take this, like we should have that faith in God. ठीक है। वो ग्रेस आए, वो फेथ आए, उसके लिए उनको भी वैसा बनना पड़ेगा। So these people sacrificed a lot, they compromised, they decided to walk away. For that matter, Gautam Buddha, he walked away, he left everything. Was he right in everybody's eyes? No, he wasn't. There were definitely his family members, maybe his wife was not happy when he left everything abruptly,
राइट? तो ग्रेस होना चाहिए. देयर शुड बी दिस पोटेंशियल दैट समबडी कुड फॉलो हिम, कुड अडोर देम फॉर गुड रीजंस, राइट? फिर आता है आपका स्प्लेंडर. भाई फैन फॉलोइंग होना चाहिए. ठीक, ऐसा नहीं कि आज मैंने एक काम किया, मुझे लगा कि नहीं दिस इज़ राइट एंड नाउ पीपल शुड स्टार्ट फॉलोइंग मी. नो, दैट इज़ नॉट माई पर्सपेक्टिव. आई शुड बी डूइंग व्हाट आई एम destined to do. I should let people decide whether I am okay or whether I should be going ahead with it or not. Makes sense? Done. So we have opulence, religion, grace, glory, splendor and dispassion. Now when I say dispassion, what does it mean? भगवान को ऐसा नहीं होना चाहिए, ओ हो मेरी पूजा नहीं करी ना, अब भी मैं बताता हूँ. नहीं, भगवान ऐसे नहीं है. भगवान कभी ऐसे नहीं है. ठीक है, भगवान यानी क्या? दैट अल्टीमेट डिवाइन. एक ही है, एक ही है. दैट डिवाइन एनर्जी इज जस्ट वन. वी आर प्रेइंग देम इन डिफरेंट फॉर्म्स. जो हमें सही लगा हम उस फॉर्म में प्रे करते चले गए. ठीक है बच्चों, ये है. अब देखो, हम बोल रहे हैं कि भाई भगवान वर्ड भी यूज़ किया है और बोल रहे हो यूनिवर्सल है. प्रॉपर्टीज सुनी तुमने? ये 6 प्रॉपर्टीज, ओप्यूलेंस, रिलीजन, ग्लोरी, ग्रेस, स्प्लेंडर एंड डिस्पैशन. ये 6 प्रॉपर्टीज जो तुम्हारी हैं, अगर ये अलाइन कर रही हैं, तुम देख लो, किसी भी रिलीजन वाले से पूछ लो, किसी भी रिलीजियस पर्सन से पूछ लो, तो जो लर्नड रिलीजियस पर्सन है वो तुम्हें यही बताएगा कि हर कोई तो इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि भाई हम सबको शांति से रहना है, हम सबको, और सबके भगवान के पास में ग्लोरी है. तुम अपने ही n नंबर ऑफ भगवान हैं हमारे इतने सारे, उसमें से भी तुम उठा लो तो भी हमारे पास यही मैसेज होता है कि हम सबको मिलजुल के रहना है, शांति से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नॉन वायलेंस को पढ़ना है, पढ़ाना है, सीखना है. तो आखिर ये सारा दिक्कत तब क्यों? मतलब ये बता रहे हैं कि भाई अल्टीमेट इज़ वन एंड दैट इज़ दैट वन डिवाइन एनर्जी. तुम्हें जिस नाम से बुलाना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम वासुदेव बोलो. एक ही है, एक ही देव है, एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, एक ही ऑलमाइटी है. वट एवर यू वॉन्ट, देयर इज जस्ट वन एंटिटी. और वही अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं. इसके बारे में हम 2nd चैप्टर में भी पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, अभी देखो, इतने पे बात नहीं ख़त्म हो जाती है. नाउ थिंक ऑफ सिचुएशन. चलो ऐसा सोच लो कि तुम्हारे घर में देयर इज़ सम सोशल, सम फैमिली गैदरिंग, और उसके अंदर ना देयर इज़ दिस गेम, गेस हु. सो समबडी इज़ गोइंग टू कम अप ऑन द स्टेज एंड विल से कि देखो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पर्सन, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है. ठीक है, घर में सब लोग बैठे हैं, तो उस इंसान के जिसके बारे में बात हो रही है उसका रिलेशनशिप क्या सबके साथ एक जैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से we are sitting in our paternal family and somebody steps up and says कि ये characteristic है, and maybe you come up saying कि अरे ये तो चाचा जी के characteristics हैं. तो तुम चाचा जी कह रहे हो, तुम्हारे भाई बहन चाचा जी कहेंगे, मे बी तुम्हारे कजिन्स, मे बी तुम्हारे बुआ के जो बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे, ये तो मामा के हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइकवाइज तुम्हारी दादी क्या कहेंगे, अरे ये तो मेरे छोटे वाले बेटे के कैरेक्टरिस्टिक है. तुम्हारी मम्मी क्या कहेंगे, अरे ये तो मेरे देवर जी के कैरेक्टरिस्टिक है. बात किसकी हो रही है? एक की हो रही है ना. ठीक वैसे ही जैसे एक ही इंसान की बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हमें समझ में आता है एक ही इंसान की बात हो रही है विद डिफरेंट नेम्स. लाइकवाइज हर एक रिलीजन एक ही डिवाइन एनर्जी को प्रे कर रहा है, जस्ट अलग अलग नेम्स के साथ. राइट एवरीवन? Any doubts? If you do have some doubts, please reach out to us in our comment section. Done. So now we are moving on to the next, which is going to talk about the power of doing your duty. Now what is it talking about? It is talking about that you are the sole responsible person. You are the only person who is responsible for what is happening to you, because तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी जो ड्यूटीज़ हैं, तुम्हें उसे फुलफिल करना है. दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन. दूसरा काम क्या है तुम्हें? ठीक है, यू हैव टू फॉलो योर पाथ, एंड वाइल यू आर फॉलोइंग योर पाथ यू माइट फील डिसहार्टेंड कि यार हमने तो किसी को दुख पहुंचा दिया. हम जब गाइडेंस देते हैं तो हम कहते हैं बच्चों देखो, अभी देखो सब के सब 12th में हो, दोस्ती यारी सब एक साइड रख दो, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि तुम दोस्ती यारी करो. हम तुम्हें ये बोल देते हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है ऐसा थोड़े ना होता है, हमारी तो फ्रेंडशिप ख़राब हो जाएगी. तो यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम्हारा फॉल्टी भी है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा ड्यूटी में कुछ फॉल्ट है, लोगों को हर्ट होगा, पर अगर वो तुम्हारी ड्यूटी राइट पाथ पे है तो फिर तुम्हें
कुछ नहीं सोचना है, डू इट, टेक अ स्टैंड, क्योंकि वो तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ है, ठीक है। ये रियलाइजेशन कौन करवाएगा तुम्हें? द श्रीमद् भागवत गीता, कि भाई राइट पाथ फॉलो करो, इट्स ओके, एंड इफ़ यू स्टार्ट फॉलोइंग द राइट पाथ, you are going to uplift yourself and your right path is going to have the other people around you too, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि भाई आप ड्यूटी फॉलो कर रहे हो, आप अपने आप को सही साबित करना है तो आप दूसरे की जाके बुराई कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ करना ही नहीं है, हमें अपनी ड्यूटी फॉलो करनी है। डोंट बी द साइलेंसर ऑफ 3 idiots। आई नो यू माइट बी गेटिंग द रेफरेंस, सो अंडरस्टैंड दैट, अपनी ड्यूटी फॉलो करो, बाकी जाने दो, ठीक है। और भगवान ने, यानी कि जो हमारे यहाँ पे द सोल एनर्जी है, उसमें ये भी बोला हुआ है कि भाई अगर तुम अपने राह पे चल रहे हो, ठीक है, और अगर तुमने अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर दिया उस डिवाइन एनर्जी के लिए, तो तुम्हारा सही पाथ अपने आप सही हो जाएगा। तुमने बहुत बड़े कुकर्म किए होंगे, बहुत बड़े पाप किए होंगे, लेकिन वो पाप भी माफ़ होने के काबिल हैं। शो द डिवोशन, show the devotion, that's it, right? So keep following your duty नहीं फॉलो करोगे तो है दिक्कत, क्योंकि तुम्हारा ड्यूटी है तुम्हारे सक्सेस का पाथ। योर सक्सेस इज इक्वल्स टू परफॉर्मिंग योर ओन ड्यूटी वाइल अपलिफ्टिंग अदर्स। ऐसा नहीं है कि दूसरे को नीचा दिखाओ और अपने आगे बढ़ते रहो, जी नहीं, हमें दूसरे की लाइन नहीं छोटी करनी, अपनी लाइन बढ़ाते रहनी है। इट्स ओके, दूसरे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लाइकवाइज डू नॉट क्विट, डू नॉट एवर क्विट। ये बोल रहे हैं भाई क्या रिग्रेट किस बात का? हर चीज़ में रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट करने पे आ गए तो फंस जाओगे, ठीक है। क्योंकि हमारी ये आदत होती है, अरे यार कल तो एग्ज़ाम है, इस बार तो नहीं पढ़ा, अगली बार पक्का पढ़ के जाएंगे, देखना अगली बार ना शुरू से ही पढ़ाई कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं होगा। ये जो हमारा अप्रोच है, ये भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हमारे लिए क्रिएट कर देता है। एंड देन वी स्टार्ट रिग्रेटिंग, जिसकी वजह से वी फील अरे यार कब से यही कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते ऐसे कितने रील्स आते होंगे कि बच्चों डोंट क्विट, राइट। तो यहाँ पे कई बार हम ये सोचते हैं यार इतना कर लिया मेहनत अभी तक, अरे अभी क्या पता जस्ट तुम्हारा क्रैक होने वाला है एंड यू हैव विड्रॉन योरसेल्फ फ्रॉम इट, यू नेवर नो। इसलिए बोल रहे डोंट क्विट, यू मस्ट नेवर गिव अप। रिग्रेट्स के टाइम आएंगे, टाइम आएगा जहाँ पे तुम्हें ऐसा लगेगा यू आर हाईली फ्रस्ट्रेटेड, पर वो फ्रस्ट्रेशन इट्स ओके, काम डाउन। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना सिखा रहा है आपका द श्रीमद् भागवत गीता। बोल रहा है गेट ओवर द 4 vices ऑफ योर लाइफ, 4 bad things फ्रॉम योर लाइफ। फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, एंगर, despondency, मतलब द आइडिया ऑफ बीइंग कीपिंग ऑन रिग्रेटिंग ओवर थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड देन आपका एनवी यानी जेलेसी। ये सब जब आ जाता है ना, हमें से लगता है क्या चल रहा है यार, क्यों हो रहा है ये, एंड वी स्टार्ट डिसलाइकिंग पीपल एंड देन अगेन, बट हम सब तो एक ही हैं, right? And then these set of feelings, your development, your ideas, your actions, right? Your ideas, your actions and your feelings contribute to your personality. इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता is known as a book that is contributing to your holistic development. ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कि भाई यू रिक्वायर नॉलेज, यू रिक्वायर एक्शन, यू रिक्वायर द डिवोशन। तो इसमें 3 योग मेंशन किए हुए हैं। फॉर आइडियाज इट्स ज्ञान योग, फॉर एक्शन इट्स कर्म योग, राइट, एंड फॉर योर फीलिंग्स इट्स भक्ति योग। सो 3 योग्स आर द पिलर्स ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप जितने कॉन्फिडेंटली, जिस दिन तुम एग्जाम के लिए एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो ना, तुम देखो तुम्हारे आइडियाज़ भी एकदम ब्लोन, हाँ अरे सब पढ़ा है तो डरना क्या है। तुम्हारे एक्शन भी वैसे ही होंगे, तुम्हारी पर्सनालिटी पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा एंड यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट। भाई पढ़ा नहीं होगा तो यार पता नहीं क्या होगा, और डर एक बार बैठ गया, वो फीलिंग डेवलप हो गई, तो देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट, यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट ओवर इट, राइट। चलो, सो वॉट इज़ द सीक्रेट टू स्टॉप वरीइंग? इसका आंसर भी दिया है श्रीमद् भागवत गीता में कि भाई स्टॉप रिग्रेटिंग। क्या हर समय रिग्रेट करते हो? यू आर हियर फॉर अ पर्पस, फुलफिल इट। पर्पस है तुम्हारा, माँ शुच, मतलब डोंट रिग्रेट, डोंट क्राई,
पर्पस है वही तुम्हें फुलफिल करना है ना, तो क्यों किस बारे में सोच रहे हो? आगे क्या होगा, पीछे क्या हो चुका है, इसकी वजह से आज नहीं खराब करो, आज जो है काम करो। इसीलिए तो बोलते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज ही तुमने बैठे अरे भगवान जी आपने क्या कर दिया, ये कर दिया, होता तो अच्छा होता। नो, यूटिलाइज योर प्रेजेंट। ये इस भरोसे मत बैठो अरे कल क्या होगा, अरे अभी तो करो, अभी तो तैयारी करो, यही बोल रहा है। एंड do not ever forget that you are born with the divine attribute। तुम्हारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, उसके साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। क्यों डर रहे हो? अपना पर्पस रियलाइज करो, एक सबलाइम लाइफ लीड करनी है, राइट? नेक्स्ट, सो दिस इज इट कि भाई योर पास्ट मिस्टेक्स, योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर वरीज, they are all the black clouds. They are stopping you, they are restraining you, they are stopping you to do things. और बस वो जो स्टॉप है उसको सही जगह लगाओ। Stop thinking about your past, stop thinking about your future, stop right away and enter, work in the present, stay in the present. That is when you are going to hit your life with a lot of light. आज पे भरोसा रखो ना, आज काम करो। ये क्या आगे का टेंशन लेके बैठो, मैम अभी एग्जाम में क्या, अरे तुमने अभी पढ़ाई करी? कल एग्जाम है, तुम बोल रहे हो मैम हमने पूरे टाइम पढ़ाई नहीं करी थी ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है ना मैम। अरे क्या अभी टाइम है ना, यूटिलाइज करो। एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? इसीलिए लास्ट में देखो श्री कृष्ण ने सीधे सीधे बोल दिया कि देखो भाई मैंने तो डीपेस्ट नॉलेज शेयर कर दी तुम लोगों के साथ, सारे नॉलेज जो जितने भी मुझे पता थे सब मैंने, मुझे क्या पता थे, जो श्रीमद् भागवत गीता में जो नॉलेज है वो सब मैंने शेयर कर दी। इट्स अ ट्रेजर, इट्स अ ट्रेजर, कीप इट वाइजली। लेकिन पर्सपेक्टिव सही रखना, पर्सपेक्टिव गलत किया ना तो तुम चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करोगे। सुबह सुबह मम्मी तुम उठे सो के, मम्मी ने कहा बेटा उठ गए तुम, तो देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस टू इट। हमारे बच्चे सीधे ताना मार रही है मम्मी, अरे वाह आज तो मम्मी ने खुशी खुशी बोला मैं उठ गया। कुछ बच्चों को लगेगा मम्मी ने ताना मार के बोला, कुछ बच्चों को लगा रही थोड़ी देर में ये नहीं किया तो डांट पड़ेगी। तो वो तुम्हारे ऊपर है। हैव द राइट पर्सपेक्टिव टू थिंक। कोई भी डिसीजन, हर सवाल का जवाब है भागवत गीता में, पर डिसीजन तुम्हें लेना है। फ्रीडम इज ऑल योर्स, नोबडी इज गोइंग टू पुल योर हैंड्स एंड देन मूव। क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि देखो, अर्जुन तो रो रहे थे कि मैं अपने फैमिली ब्लड लाइन में कैसे लड़ूं, क्या करूं। तो श्री कृष्ण ने कहा तुम अपना कर्म करो, अभी कर्म करो, ठीक है? मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें ड्यूटी, जो सही काम है तुम्हें उसे फॉलो करना है, क्योंकि वही जो सही ड्यूटी है वो तुम्हें आगे लेके जाएगी। तुम्हें बैटल करना है अपने लोगों के वेलबींग के लिए। इसीलिए तो पांडवास की आर्मी छोटी थी बट वो कौरवास से जीत गए। राइट पर्पस, ऑलवेज हैव द राइट पर्पस, द राइट इंटेंशन एंड यू आर गोइंग टू एज थ्रू इट। ठीक है बच्चों, राइट पर्पस, राइट थॉट्स, सब चीज़ अगर तुम्हारा सही है तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हाँ लगेगा, ऐसे मोमेंटरी सैडनेस फील होगा, अरे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बट देन यू विल गेट ओवर इट, क्योंकि तुम सीख चुके हो डिटैचमेंट फॉर गुड रीजंस। फ्रीडम तुम्हारे पास ही है। देखो तुम्हारे फ्रेंड्स भी, तुम फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से, किसी से भी कुछ डिस्कशन करते होगे, इतना सब कुछ बताने के बाद सब क्या बोलते हैं, बाकी बेटा आगे तुम्हारी इच्छा है। नाउ दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो दो चीज़ें यहाँ पे हमें सीखने मिलती है कि व्हेन वी आर वल्नरेबल, जब हम लोग अपने लोज में चल रहे होते हैं ना, तब हम किसी से हेल्प मांगने जाते हैं, पर हम उस लो में पहुँचते ही नहीं अगर हमने सही तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट किया होता, सही तरीके से लोगों को वैल्यू किया होता, राइट? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू आर योर ओन मास्टर। तुम जो कर रहे हो वो डिसीजन तुम्हारे हाथ में। यू हैव द फ्रीडम टू डिसाइड योर लाइफ, नोबडी एल्स डज। ठीक है, ये बोलता है हमारा श्रीमद् भागवत गीता। फाइनल इंस्ट्रक्शन, डू एज यू सी फिट। जो तुम्हें सही लगे वो करो। आज तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं है, दैट इज़ योर डिसीजन। हमने तुम्हें इंपॉर्टेंस बता दिया, तुम नहीं पढ़ोगे तो कॉन्सिक्वेंस तुम्हें देखने हैं, तुम पढ़ लोगे कॉन्सिक्वेंस तुम्हें देखने हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम अपने कर्म कर रहे हैं। Our कर्तव्य was to teach you in the right manner, which we are doing. Your parents' कर्तव्य was to teach you, to send you to the right place. They have done it.
नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू सी फिट, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। अल्टीमेट गोल अ लिबरेटेड लाइफ इन पीस, कि भाई श्रीमद् भागवत गीता का अल्टीमेट यही है कि सब सुखी रहो, सब शांत रहो, लड़ो झगड़ो नहीं, जबकि वो खुद बैटल ग्राउंड में जन्मी है। जैसे मैंने कहा वल्नरेबल थे अर्जुन, बट उनके इतने सारे हशपश में उनको इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि नहीं, इट्स ओके, आई हैव टू डू थिंग्स फॉर द गुड। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि भाई अल्टीमेट गोल इज़ व्हाट, दैट वी मस्ट हैव अ लिबरेटेड लाइफ, अ फ्री लाइफ, कि वी आर नॉट होल्डिंग पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स, राइट एवरीवन। नाउ I hope you understood the core message of what is being given away in the first chapter of your text, which is the Srimad Bhagavad Gita, the universal scripture. Remember, this has solutions to all your problems. The Srimad Bhagavad Gita has solutions to all your problems and it is applicable to all. अब ये ध्यान में रखते हुए, go ahead, everybody, all the students of GSEB, go ahead, study well, go through, just please read the essay once and you will be able to understand what I have explained so far. बहुत easy है, tough नहीं है, भले इतना late introduction है, but मज़ेदार है। मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में, बच्चों को पढ़ने में, और अगर मज़ा ना आए, पढ़ना तो है ही, right everyone? Now like, share, subscribe, comment. Also stay connected for the next session. Thank you everyone.